आप सोचो, आपके गांव से अगर हम सामान कचरा उठाते हैं तो आप हमें क्या करेंगे? और उसके पैसे से उठा रहे हैं दोस्त, फ्री में नहीं उठा रहे हैं। हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है गालियां, हमारी पिटाई होती है। एक बिजनेस इकोसिस्टम जो 40 साल के अंदर बहुत से लोगों ने मिलकर के इकट्ठा किया है, वो बिजनेस इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। आप इंक्यूबेशन सेंटर में हैं दोस्त, आपको पता है एक नया आइडिया को तैयार करने में, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। क्वेश्चन मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? आप सब बिजनेस गुरु हैं, कल को कोई गूगल का चीफ बनेगा, कोई माइक्रोसॉफ्ट का चीफ बनेगा, या यू विल बी द टॉप प्रास ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, हम जो एक्सपोर्टर्स हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हम बुरे नहीं हैं, हमारी इंडस्ट्री बुरी नहीं है, हम कचरा जरूर साफ करते हैं, पर आपका कचरा साफ कर रहे हैं। बस हमें जिंदा रहने दो, बस हमें जिंदा रहने दो, ऐ गुस्सों वालों। धन्यवाद। I would like to invite Mr. Vijay Thakur, a seasoned journalist and researcher with over 20 years in export sector. With 25 years at Statesman as a special representative, he has covered fields like energy, from energy to IT. Recently, he launched Indian Hearts, a YouTube channel where he shares his passion for cinematography and blogging. Hi friends, my name is Vijay Thakur and I'm really thankful to ARC organizers and IITM to give me this opportunity to express myself in front of the future business gurus of your institute. Friends, I'm a very small exporter. My theme is converting waste to wealth. What we do, we collect all the waste materials spread all over the country, collect it, process it, convert it into artware, and then export it. In the process, what we are doing? We are doing four things. One, we are saving our environment. Two, we are saving money to dispose of that waste. Three, we are generating employment. And fourth, most importantly, we are generating foreign exchange for our country. Over and above, these are my products, they are wonderful products. And all these are made of dead animal derivatives. Wherever we go, wherever we sell our product, like I sell my product to over 2 dozen countries. I have 150 accounts, and I'm still a foot soldier of this small industry. When people see this product, what they say, wow, what a wonderful product. It's from India. Directly, indirectly, my artisans have become brand ambassador of our country. They promote our product, promote our country, give some good name to my country. But how we do it? It's a very, it looks very simple. Collecting it, then processing it, then converting it into artware, and then exporting it. But friends, frankly speaking, to develop this business ecosystem, it took lots and lots of time. Not me. As I said, I'm a very small foot soldier. There are many people, those who are engaged to it. There's a business community, there are exporter community, those who are dedicated to develop our product, export it, find out foreign market, develop foreign market to a new product. And friends, most importantly, at the end of the day, what we are doing. I just give you a few examples. In Europe, if a cattle dies, normal cost of disposing of its carcass is around $50. It may be $10 less, $10 more. What we do here, like for myself, or in
In India, we have around 30 crore cattle population. On an average, 3 crore cattle population dies every year. We use their skins for leather and all. What happens to their carcass? उनका लक हड्डी सींग वो गांव के कोने में आराम से कहीं पड़ा होता है, बदबू मार रहा होता है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर सके, और कॉस्ट भी बहुत लगेगा। मैंने बताया अगर 5 करोड़ है, यूरोप के नॉर्म से जाए तो $150 करोड़ केवल उसको डिस्पोज ऑफ करने में लगेगा। हम उसको वहां से कलेक्ट करते हैं, और जहां से हम कलेक्ट करते हैं वी पे मनी टू दोज कीपर्स। वहां से कलेक्ट करके अपने पास लेके आते हैं। अब मैं अपनी छोटी सी कंपनी की बात करता हूं। मैंने 20 सालों में तकरीबन 120 मिलियन मीट्रिक टन का डेड डेरिवेटिव एनिमल वेस्ट को प्रोसेस किया है, कन्वर्ट किया है, और उनको गोरों को चेप दिया है। एनीवे, और उस सारी प्रोसेस में क्या हुआ, मैंने कमाया कितना, शायद $2.5 मिलियन। मेरे एम्प्लॉयमेंट हमने कितना जनरेट किया, एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, लाख कम लाख ज्यादा हो सकता है, बट मैंने 5 से 8 लाख मैंडेज जनरेट किए। और अब ह्यूमन वेस्ट का मैंने आपको 125 मिलियन मीट्रिक टन बताया। वैसे हम बताएं, अगर मुझे उसको डिस्पोज ऑफ करना होता तो इंडियन के रुपीस के हिसाब से मेरे जो मैंने प्रोडक्ट बनाया उसको डिस्पोज ऑफ करने की ही कॉस्ट 30-40 लाख बैठती। और अगर उसको दफनाया जाता तो जिस जमीन में दफनाया जाता, कम से कम वो एक गांव को पूरा राशन पानी दे सकती है। ये हमारे कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन है। एज आई सेड, आई एम अ वेरी स्मॉल फुट सोल्जर। मेरे और भी दोस्त हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं, और लगातार हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर आप लोगों के पास आने का एक छोटा सा कारण और भी है। दोस्तों, कारण क्या है? पिछले 10 साल से ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये मर रही है। हो सकता है हमारी जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो इस आर्ट को प्रमोट ना करे। कारण एक ऐसा कारण है जिसको लेकर के शायद आप हंसोगे। मैं कहूं, मैंने आपके गांव का कचरा उठाया है, उसको प्रोसेस किया है, फ्री में नहीं उठाया है, आपको पैसे दिए हैं। कर्नाटका के किसी गांव से उठाया है, वहां से उठा करके मैं अपने यूपी के किसी टाउन में लेकर के आया हूं, मैंने उसको प्रोसेस किया है, मैंने अपने देश को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिया है। उसके बाद मैंने उसको विदेश में बेचा। मैं फ्रैंकफर्ट गया, हम हांगकांग गए, हमने जाकर के अपने प्रोडक्ट को बनाया, डिस्प्ले किया, डिजाइनर से इसको डेवलप करवाया, उसको प्रमोट किया, उसको बेचा, बेच करके हम फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करके आए। और उसके साथ साथ हमने अपने कंट्री के नाम को कहीं ना कहीं थोड़ा आगे भी बढ़ाया। पर उसके बावजूद कुछ एक लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्ट के जानी दुश्मन बने हैं। आप सोचो, आपके गांव से अगर हम सामान कचरा उठाते हैं तो आप हमें क्या करेंगे? और उसके पैसे से उठा रहे हैं, तो फ्री में नहीं उठा रहे। हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है गालियां, हमारी पिटाई होती है। मेरी नहीं, मेरे सप्लायर की पिटाई होती है। कारण कुछ वेजिटेरियन ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम गुनाह कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे, पर सच्चाई यही है। हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या ग्राम पंचायत से पैसे दे करके, जीएसटी दे करके, गवर्नमेंट का टैक्स दे करके वहां से उठाया, ट्रक से उठाया, ट्रक भी फ्री में नहीं लेके जाए, ट्रक वाले को भी पैसा दिया। रास्ते में पुलिस वाले मिलते हैं, थोड़ा सा चाय पानी का खर्चा शायद उनको भी दिया जाता होगा। बेचारे कुछ मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, डिपेंड करता है, वो भी मंजूर है। पर कुछ सेल्फ स्टाइल लोग आते हैं
हमारे कारीगरों को, हमारे सप्लायर को लेकर के पीट पाट करके चले जाते हैं। वो लगता है कि हम उनके धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। और आप सब बिजनेस गुरु हैं, कल को कोई गूगल का चीफ बनेगा, कोई माइक्रोसॉफ्ट का चीफ बनेगा, या यू विल बी द टॉप ब्रास ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, दोस्तों, हम जो एक्सपोर्टर्स हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं? मैं चला जाऊंगा, मुझे पैसे का इतना जरूरत नहीं है, कमा लिया, 30 साल जर्नलिज्म में रहा, ये क्या थोड़ा सा पहला भी प्रॉपर्टी, भूखे ही नहीं मरूंगा। मेरे कारीगर हैं, उनको भी कोई दुख नहीं होगा। आज वो ये काम कर रहे हैं, कल को कारपेंटरी कर लेंगे, पत्थर तोड़ लेंगे, आपके कोई भी मेहनत वाला काम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, कमा लेंगे, भूखे वो भी नहीं मरेंगे। पर एक बिजनेस इकोसिस्टम जो 40 साल के अंदर बहुत से लोगों ने मिलकर के इकट्ठा किया है, वो बिजनेस इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। आप इंक्यूबेशन सेंटर में हैं दोस्त, आपको पता है एक नया आइडिया को तैयार करने में, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। कितने हमारे ऐसे लोग हैं जो रात दिन इस बिजनेस को स्टैंड करने के लिए अपने रातों उन्होंने बर्बाद किया होगा, आज उनका क्या हाल होगा? शायद वो भी, चलो कोई बात नहीं, बिजनेस नया शुरू कर देंगे। हमारा बिजनेस ज्यादा कोई गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करके नहीं देता, मे बी 50 मिलियन, मे बी 100 मिलियन, नॉट अ बिग अमाउंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। पर अगर हम एवरेज देखें तो सारे हमारी कम्युनिटी मिलकर के एक साल के अंदर 5 से 10 करोड़ आर्ट इफेक्ट्स बनाते हैं। वो आर्ट इफेक्ट्स विदेशों में जाते हैं। यूरोप में हमारे आइटम्स की बहुत डिमांड है। हमारी डिमांड है आपके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, अमेरिका में, अब तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान, ये भी हमारे प्रोडक्ट के फैन हो गए हैं। पर उसके बावजूद उन 5 करोड़ जो आइटम्स हम बनाते हैं, आने वाले सालों में वो उनके हाथों में शायद नहीं जाए। वो नहीं कहेंगे वाओ इट्स एन इंडियन प्रोडक्ट। जो 5 करोड़ या 10 करोड़ आइटम्स हम बनाते हैं, जो हम इंडिया का ब्रांड आगे बढ़ा रहे हैं, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्वेश्चन मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? अगर हम आपके गांव के 6.5 लाख गांव हैं हमारे इंडिया के अंदर, 6.5 लाख गांव में से 3.5 करोड़ कैटल्स का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल में 135 मिलियन मेट्रिक टन के करीब का वेस्ट बैठता है। उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में, तो क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? मैं इसी प्रश्न के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और लास्ट में एक चीज कहूंगा। कल इसी मंच पे एक बहुत अच्छा गजल का सेरेमनी हुआ था और मैं डायरेक्टर साहब को कह रहा था कि साहब, मैंने 30 सालों में इतना अच्छा कहीं भी आराम से फ्रेश होकर के एंजॉय नहीं किया जितना मैंने कल किया है। 20 साल तो इसी इंडस्ट्री को तैयार करने में लग गए, उससे पहले जर्नलिज्म में घास काटी। उस कल के फंक्शन के लास्ट गजल का लास्ट स्टैंजा था, मैं पढ़ता हूं, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। ये जो स्टैंजा था राजेंद्र पारिक जी ने गाया था और ये नुसरत फतेह अली खान की गजल है कि काली काली जुल्फों को, हाँ, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं से खत्म करता हूं। हम बुरे नहीं हैं, हमारी इंडस्ट्री बुरी नहीं है, हम कचरा जरूर साफ करते हैं, पर आपका कचरा साफ कर रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत पैसा हम कमा रहे हैं। बस हमें जिंदा रहने दो, बस हमें जिंदा रहने दो ऐ गुस्सों वालों। धन्यवाद और जय हिंद।